I being a scientific person, I being a surgeon, I would say It here because Dr. D.K. Das is one of the fastest surgeons in India. पड़ सकता है वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है Will be somewhere around 20 or 40 lakh. इंडिया जो है चाइना से ज़्यादा सफ़र कर रही है बिकॉज ऑफ द नी पेन। भी बोलें कि आपके घुटने बदलने हैं जी। How healthy your joints are? इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री having knee problems and knee pain. Namaskar. Welcome to another podcast. Today we have here with us Dr. D.K. Das, Senior Consultant, Orthopedics and Joint Replacement Surgeon at Apollo Spectra Group of Hospitals. Right now he's here all, being ready to answer all the questions that we have. So it's a precious time and we're going to use it. Thank you. Thank you. To start with, we always, as a kid, I always used to think about that when you go to a doctor, it means that you are treating your problem, so doctors are healthy. Okay. We have Dr. D.K. Das, who is a orthopedics and joint replacement surgeon. I want to know how healthy your joints are and how healthy your knees are. Something that I am very excited So, what is joints? Like अगर हम शुरुआत करते हैं कि joints means we consider all the joints, हाथ के joint, पैर के joints, hip joint, but actually we mean joints मतलब जिस joint के साथ आप चलते फिरते हो, उठते बैठते हो, सीढ़ी चढ़ते हो, आपकी normal day to day activities जो करते हो, and most affected and weight bearing joints जो हमारे होते हैं वो है knee and hip joint. Okay. So जो ज़्यादा इफेक्ट होता है वो नी जॉइंट एंड हिप जॉइंट, रीज़न बीइंग बॉडी का सारा वजन नी पे पड़ता है। Okay. सो आपके क्वेश्चन में अगर मैं आऊँ हाउ हेल्दी इज़ माई जॉइंट, सी हेल्दी जॉइंट मीन्स यू डजंट हैव पेन, मसल्स अराउंड द जॉइंट आर फाइन एंड द स्किन ओवर द जॉइंट आर फाइन। सो अब if it is not bothering your day to day activity कि आप उठ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं और आप नॉर्मल काम नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स योर जॉइंट्स आर नॉट हेल्दी। Okay. एंड थ्रू आउट द डे अगर आप काम कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, एंड यू आर एबल टू डू एक्सरसाइज, डे टू डे एक्टिविटी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, दैट मीन्स योर जॉइंट्स आर हेल्दी। सो आई बिलीव आई एम ट्राइंग टू कीप माई जॉइंट्स हेल्दी एज वेल। As an expert, I like to understand what does your day look like at a hospital, particularly in terms of what kinds of patients, what kind of problems that you are listening, and what are the most common ones. Madam, if we consider the prevalence of joint pain or knee problems in India, India is one of the fastest growing country having knee problems and knee pain. Okay. Most likely, as far as data is concerned, it is the second largest country in the world where the people are suffering from knee pain and knee problem. Okay. And in India, the percentage I would say approximately is around 27 to 37% of the Indian population is suffering from knee pain and knee problems. Okay. एंड यू कैन इमेजिन 140 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन में 37% लोगों को नी की दर्द है। ये कितनी प्रॉब्लम है जो हम अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड नी इज़ समथिंग जिससे आप डे टू डे एक्टिविटी सारी चीज़ें करते हैं, और अगर आप बेड रिडन हो जाते हैं तो आपकी सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती है। Yeah. So it is something which is silently killing our lifestyle. For example, कि अगर आप नी खराब है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ते हैं, and it is most common in females, like the females are more affected than males because of sedentary lifestyle. Why India? अगर आप मुझे पूछेंगे इंडिया में ही क्यों, राइट? इंडिया में इसलिए क्योंकि आप जो है sedentary lifestyle, इंडिया जो है चाइना से ज़्यादा सफ़र कर रही है बिकॉज ऑफ द नी पेन। रीज़न बीइंग फीमेल्स आर मोर सफ़रर, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, एंड मोर ओवर हमारी जो हैबिट्स हैं कि हम थोड़ा सा ज़्यादा नीचे बैठते हैं, एक ही पोजीशन पे बैठते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वेट पुट ऑन करते हैं, फूड हैबिट्स ऐसे हैं, एंड ग्रेजुअली वी नेग्लेक्ट एज वेल. So for example,
मान लीजिए कि कोई टीनेज में किसी को कभी कोई चोट लगती है, तो वो सोचता है चलो जी कुछ गर्म पट्टी लगा लो, कोई दवा खा लो, दर्द ठीक हो गए, हम ठीक हो गए। बट लेट मी मेक इट वेरी सिंपल, हमारे नी जॉइंट, बिकॉज वाई नी इज इंपॉर्टेंट, नी इसलिए इंपॉर्टेंट है, देयर आर सर्टेन लिगामेंट, देयर आर 6 लिगामेंट्स इनसाइड द नी जॉइंट, राइट। अब नी जॉइंट के अंदर में लिगामेंट्स हैं, कभी किसी को चोट लगती है उसमें लिगामेंट टूट जाता है, एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नी दैट गोज अवे। उससे क्या होता है, हमारी नी की जो है वेयर एंड टियर शुरू हो जाती है, बट हम उसको इग्नोर करते हैं। इवन बहुत सारे डॉक्टर्स एंड मेडिकल फ्रेटर्निटी भी कई बार सोचते हैं चलो जी दवा खा लो, बट फाइनली व्हेन यू रीच टू अ एज ऑफ 40, 45, 50, मिडिल एज में आप आते हैं, सो आपको नी पेन बढ़ता है जब, तब आप एक्सरे करवाते हैं, तब तक आपका नी के जो कार्टिलेज है, जो कुशनिंग होते हैं, जैसे 2 सर्फेसेस होते हैं कुशनिंग, वो कुशनिंग आपका धीरे धीरे वेयर आउट हो चुका होता है। देन यू रन अराउंड हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स, तब क्या करें, बट गाड़ी चलेगी तो टायर घिसेगी, बट थोड़ा सा संभल के अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो टायर जल्दी घिसते नहीं है। तो सेम गोज विद द नी। सो इसलिए नी पेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वी बीइंग द मेडिकल प्रोफेशन, हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों के अवेयरनेस बढ़ाएं, और लोग वहाँ तक ना पहुँचे जहाँ पे जॉइंट रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़े। अब टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव कर गई है, और जहाँ जिस स्टेज में ज़रूरत पड़े वो इलाज ज़रूर करवानी चाहिए, ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमेशा अच्छा रहे और आप हमेशा चलते फिरते रहे। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव बेसिकली। Now, while we're talking about joint replacement surgery and knee replacement surgery, what's the percentage of how successful these surgeries are? देखिए, आपने बहुत अच्छे से पूछा कि व्हाट इज़ नी रिप्लेसमेंट। एक पेशेंट को अगर आप पूछें कि जॉइंट रिप्लेसमेंट करवानी है, वो चौंक जाता है, ठीक है, डरता है। अब मुझे भी बोलें कि आपके घुटने बदलने हैं जी, बट ऐसा होता नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जो स्टेजेस होते हैं, अगर इनिशियल स्टेज में आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेल्दी डाइट, हेल्दी एक्सरसाइजेस, मसल्स अराउंड द नी, जिससे आपके क्या होता है, स्ट्रेंथ बनी रहेगी, तो आपके नी के अंदर में, और जैसे मैंने आपको बताया, आपके अगर लिगामेंट टूट जाते हैं तो लिगामेंट के रिपेयर करवाइए। आई मीन देयर आर सो मेनी वेज ऑफ ट्रीटिंग अ नी। सो आप प्रॉपर डॉक्टर से विजिट करिए एंड यू इन्वेस्टिगेट द नी, सो दैट आपको जाके वो स्टेज ना आए कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े। अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन पे कि नी रिप्लेसमेंट क्या है। देखिए, नी रिप्लेसमेंट बोली जाती है, बट वो ऐसा नहीं है कि एक घुटना काटा दूसरा लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके नी जो होते हैं, उसके जो कार्टिलेज, जो सरफेसेस होते हैं, वो वोन आउट हो जाते हैं, घिस जाते हैं। अब वो घिसते हैं, वो तो पैदा हो नहीं सकते, वो तो गॉड गिफ्टेड चीज़ है। जैसे आप दांत लगाते हैं, आप दांत लगाते हैं, दांत आप या तो निकालते हैं, उसको फ्रेशन अप करके आप एक कैप लगा देते हैं। सेम गोज विद द नी। सो आपके बोन्स, आपके मसल्स, आपके लिगामेंट सब वही रहते हैं, लेकिन जो आपका जो डेड पार्ट है, जो कार्टिलेज जो घिस गया है, वी जस्ट शेव अप दैट, हम उसको हल्का सा छिल देते हैं। हम छिलने के बाद, इट्स लाइक ए कारपेंटर, जैसे लकड़ी छिली जाती है, सो वैसे थोड़ा सा छिल के उस पर एक इम्प्लांट लगा देते हैं। वो इम्प्लांट कभी ख़राब नहीं होता। लोग सोचते हैं कि कितनी साल लाइफ है, कितना साल लाइफ। अब देखिए, वो इम्प्लांट तो है, बहुत अच्छे अच्छे वर्ल्ड के, US के आते हैं, जर्मनी के आते हैं, इंडिया के भी आते हैं। सो बहुत अच्छी इम्प्लांट्स है, बहुत सालों तक रिसर्च करने के बाद वो इम्प्लांट बनाई जाती है। वो बहुत लाइट मेटल होते हैं, वो कभी टूटते नहीं हैं, वो इन्फेक्शन फ्री होते हैं, और उसको बहुत सालों तक प्रोसेस किया जाता है, रिसर्च करके बनाई जाती है, जो आपकी बॉडी फ्रेंडली होते हैं। इट इज़ लाइक यू आर वेयरिंग ए ईयर रिंग्स, यू आर वेयरिंग ए नोज, एंड आई एम वेयरिंग ए स्पेक्स। दिस स्पेक्स इज नॉट, आई मीन, डूइंग एनी हार्म टू माई फेस। सेम गोज विद द नी। सो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, सिर्फ आपके कार्टिलेज को शेव ऑफ करके इम्प्लांट फिट इन कर देते हैं, एंड वी पुट ए पॉलीइथिलीन, जिसे हम कहते हैं कुशनिंग होती है, जिससे आपका नी का फंक्शन आ जाता है। अब आपकी बोन, आपके मसल्स, आपके सारी चीज़ ओरिजिनल रहते हैं। सो वी आर जस्ट रिप्लेसिंग द सरफेस, वी आर नॉट रिप्लेसिंग द जॉइंट। वी कॉल इट जॉइंट रिप्लेसमेंट, बट एज ए लेमैन अगर आप पूछेंगे, मेरा तो घुटना बदल गया, इतना काटेंगे, इतना वो होगा, दर्द होएगी, चीखें निकलेंगे, मैं 6 महीने तक बिस्तर पे रहूँगी, वॉशरूम कैसे यूज़ करूँगी, जैसे आपने अब पूछा। मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ कि कितना सक्सेसफुल है। देखिए, सक्सेसफुल डेटा सेज 90 to 96% ऑफ सक्सेस रेट है अक्रॉस द ग्लोब, राइट। और
कौन सर्जरी कर रहा है, इफ़ द सर्जन इज ट्रेंड, देखिए हर बंदा हर चीज़ में ट्रेंड नहीं होता है, राइट। जैसे हर शेफ़ हर खाना बनाने में ट्रेंड नहीं होता है। तो हर फील्ड में जब स्पेशलिटी है तो हमारे ऑर्थोपेडिक्स में भी सुपर स्पेशलिटी है। एंड द पर्सन हु हैज़ बीन डूइंग रेगुलरली एंड ही हैज़ बीन ट्रेंड to do the joint replacement and he has done so many joint replacement surgery. So आपको ये देखना है कि कौन से सर्जन्स जो बहुत करते हैं उनके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, और वो सर्जरी अगर वो सर्जन करते हैं, so I don't think there is any doubt about the result. This is, I mean, very simple. This is very simple. This is mathematics. And patient को ज़रूर 100% रिजल्ट मिलता है जैसे हम करते हैं। I mean, we, my and my team, I do. So सर्जरी बहुत हैसल फ्री होती है। आप ऑलमोस्ट 1 आवर 1.5 आवर सर्जरी होती है जिसमें आपकी दोनों नी जैसे मैंने बताया सरफेसेस चेंज हो गए। आप सोचिए आप 15 साल से 10 साल से आप सफ़र कर रहे हैं, आपके टेढ़े मेढ़े घुटने लेके आप चल रहे हैं, आप मंदिर नहीं जा सकते, आप मस्जिद नहीं जा सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते, आप एक एज के बाद मॉर्निंग वॉक जाना चाहते हैं, अपनी उम्र के लोगों से मिलना चाहते हैं। जब आप फ्री होते हैं लाइफ में, एक रिटायर्ड लाइफ या प्री रिटायरमेंट लाइफ जीना चाहते हैं, उस वक्त में आप डिसेबल्ड हो जाते हैं। फीमेल्स होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनको काम करना है, घर संभालना है, बच्चे संभालने हैं, बच्चों की शादी करनी है, इन चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ग्रेजुअली धीरे धीरे डिटोरिएट करती जाती है, विच इज़ एक्चुअली अ डिसेबिलिटी। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आप इमेजिन करिए कि एक 50 ईयर्स 40 ईयर्स 60 ईयर्स लेडी है, वो 10 साल से लिम्प करके चल रही है, टेढ़ा मेढ़ा पैर लेके चल रही है। थिंग्स हैव चेंज्ड, टेक्नोलॉजी हैव चेंज्ड। सो ग्रेजुअली, जैसे मोबाइल फ़ोन होता नहीं था, है ना, पहले आप इतने बड़े मोबाइल फ़ोन लेके घूमते थे, आज के डेट में आप स्लिक होता है। सो डिजिटली टेक्नोलॉजिकली वाइज आप सारी चीज़ें इम्प्रूव कर रही हैं। तो वी एज ए सर्जन वी आर ऑल्सो इम्प्रूवाइजिंग आवर सेल्व्स एंड अपडेटिंग आवर सेल्फ विद द टेक्नोलॉजी। और ज़रूरत है तो नहीं करानी है। सो आपके किस स्टेज में है, उस स्टेज में आप ज़रूर ट्रीटमेंट कराइए। आपकी क्वालिटी ऑफ, मेरे 90% पेशेंट यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने 10 साल अपनी ज़िंदगी नहीं, हम 10 साल पहले ही करवा लेते। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू आर, टाइम कभी वापस आता नहीं है। सो आप अगर 40 से 50 साल या 50 साल से 60 साल या 60 से 70 साल आपने सिर्फ दर्द में अपनी ज़िंदगी के टाइम ख़राब किया है, डर डर के। Replacement surgery in a lot of cases takes 6 to 7 hours. We are mentioning it here because Dr. D.K. Das is one of the fastest surgeons in India, and it's an honor to be sitting with him and talking to him. Something I want to understand, when you are able to replace one knee in like 15-20 minutes and two of them in 45 minutes to an hour, what is the, and I am asking it from a patient's perspective, when you are going to a doctor who's replacing it in 6 to 7 hours and there's another surgery which can be completed in an hour, what are the benefits according to the patient's point of view? See, surgery. Okay. टाइम इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए नॉर्मली सर्जन्स करते हैं, आई मीन अक्रॉस द ग्लोब इन पैन इंडिया, और जैसे जैसे सर्जन्स करते हैं, जितना ज़्यादा करते हैं, जितना साल करते हैं और जितनी फास्ट करते हैं, बट होता क्या है कि हमारे बॉडी में जो है, हम ब्लड के खून के दौरा को रोक सकते हैं फॉर 1.5 आवर्स। सो अगर हम थोड़ा सा जल्दी करें और अच्छे से करें, सो थोड़ा ब्लड लॉस नहीं होता। मान लीजिए सब ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, उनका हार्ट पे, किडनी पे, लीवर पे प्रेशर पड़ता है कि आप एक पेशेंट अगर 6 घंटे 5 घंटे अगर सर्जरी, नॉर्मली इट टेक्स 1.5 आवर एवरेज टू 2 आवर्स फॉर वन नी, बोथ द नीज 2 to 3 आवर्स में बहुत सारे लोग ही करते हैं जो लोग रेगुलर करते हैं। बट थोड़ा फास्ट हम कोशिश ये करते हैं कि पेशेंट को हार्ट पे, किडनी पे प्रेशर ना पड़े। देखिए ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनके बाईपास सर्जरी हुई होती है, जिनके स्टेंट लगे हुए रहते हैं और डायबिटिक होते हैं। सो वैसे पेशेंट्स में टाइम मैटर्स, बिकॉज आप जितना कम कट लगाएंगे, जितना कम इंसिजन होगा, जितनी फास्ट आप सर्जरी करेंगे, उतनी रिहेबिलिटेशन विल बी फास्टर, पेन विल बी लेस प्रेशर ऑन द सिस्टमिक, आई मीन हार्ट, किडनी, लीवर सिस्टम में आपको कम पड़ता है।
and patient is more comfortable, like आप you are lying down for hours together and 1.5 hours 2 hours में आपकी सर्जरी हो गई है, तो आपका डिस्कम्फर्ट नहीं रहता, आपकी हेमोडाइनमिकली आप स्टेबल, हेमोडाइनमिक मतलब होता है आपका ब्लड प्रेशर, आपका जो सर्कुलेशन है, आपकी ब्लीडिंग नहीं होती है। सो जैसे आप होता है ना कि आप एक खाना पकाते हैं और आप 2-4 घंटे तक बहुत ज़्यादा चीज़ें डालते उलते, तो कहीं ना कहीं लगता है आप स्मूथली अगर एक चीज़ों को बना के आप सर्व कर देते हैं, आप देखिएगा वो बहुत अच्छे से सर्व भी होता है, खाना टेस्टी भी होता है, करेक्ट। सो जो बहुत रेगुलर करते थोड़ा प्रेशर ऑन द बॉडी रिड्यूसेस एंड पेशेंट बहुत कंफर्टेबल होते हैं, एंड दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और एनेस्थेटिस्ट जो है, आपको जितने ज़्यादा देर तक एनेस्थीसिया दिया जाता है तो बॉडी में बॉडी का सिस्टम थोड़ा सा हिल जाता है, राइट, बिकॉज़ एवरीथिंग इज काइंड ऑफ ब्लॉक्ड एंड एग्जैक्टली। सो बेटर यही रहता है कि थोड़ा सा जल्दी हो जाए, थोड़े से परफेक्शन के साथ हो जाए। For it, it's our responsibility to tell the listeners of that there are limitations and what are those limitations. डेफिनेटली देखिए, ऑपरेशन से पहले अगर आपके प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स आपके क्या हैं, आप स्टेयर क्लाइंबिंग नहीं कर सकते, आप वॉक पे नहीं जा सकते, आप नी बेंड नहीं कर सकते और आपकी डिफॉर्मिटी ज़्यादा है, तो आप 10 कदम के बाद ही आप बैठ जाते हैं, राइट। सो आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपकी मान लीजिए आप किसी को शुगर होते हैं, किसी को कोलेस्ट्रॉल होती है, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी के हार्ट की सर्जरी होती है, सारे डॉक्टर्स आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आप वॉक करिए, वॉक करके आप अपने आप को नॉर्मल रखिए। बिकॉज आप देखिएगा जब एज बढ़ते हैं तो हम सजेस्ट करते हैं आप वॉक पे जाइए, वाई, रीज़न बीइंग आपके बाकी पैरामीटर्स सही रहे। सो अगर एक 5 years 10 years से एक पेशेंट अगर सफ़र कर रहा है और सफ़र करते करते अपने आप को डिसेबल कर दे रहा है, तो ही इज़ लिमिटिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, आप वो लेटे ही रहते हैं जी, और कितना साल जीना है और हमें ऐसी ज़िंदगी काटना है, तो आप सोचिए उस लिमिटेशन से सबसे इम्पॉर्टेंट पेन होती है एंड मोबिलिटी आपकी। सो उस लिमिटेशंस में अगर आप सर्जरी करवाते हैं, आपकी जो पर्पस है, पेन ख़त्म हो जाती है। सेकंड, आप मोबाइल हो जाते हैं। सो रेस्ट्रिक्शन से पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि दोनों नी रिप्लेसमेंट और अगर दोनों ख़राब है तो दोनों एक साथ ही करवाना चाहिए। स्टडीज़ हैव बीन डन, इसमें एक कंट्रोवर्सी है कि दोनों, अगर आपके मेडिकली आप फिट हैं और आपकी सर्जरी दोनों एक साथ हो रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, दोनों एक साथ करा के आप एक साथ रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छे से रिहेबिलिटेशन हो पाती है। सो अब हम आते हैं कि लिमिटेशंस पे। सो आप वैसे लिमिटेड लाइफ जी रहे थे, जीने के बाद आपने ऑपरेशन करवा ली, ऑपरेशन करने के बाद आप 10 किलोमीटर्स वॉक कर सकते हैं, जो एक नॉर्मल आदमी 2 बार सोचता है। आप 10th फ्लोर तक भी चढ़ सकते हैं, आप क्लाइंबिंग कर सकते हैं, आप ट्रक चला सकते हैं, आप गोल्फ खेल सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, नीचे भी बैठ सकते हैं, बट नॉर्मली हम अवॉइड करते हैं। आप पूरी तरह नी बेंड कर सकते हैं। सो यू कैन, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये चीज़ें अगर आप नहीं भी करवाते ऑपरेशन, आई डोंट थिंक आपको फुटबॉल खेलने की ज़रूरत पड़ती है एट द एज ऑफ 60 और 65। आई एम सॉरी टू से समबडी मस्ट बी प्लेइंग एट द एज ऑफ 60-70, बट नॉर्मली डिफरेंशिएट्स के हर एक इंसान को कितना टाइम लगता है इस सर्जरी से रिकवर करने में। करेक्ट आई कैन एक्सप्लेन इन ए बहुत सिंप्लीफाइड वे। नॉर्मली जो सर्जरीज होते हैं, अगर अच्छे से सर्जरी, अच्छे का मतलब थोड़ा रिफाइंड हो, थोड़ा परफेक्शन के साथ हो सर्जरी, सो उससे सर्जरी आज जैसे हो जाते हैं, आप हम कल छोड़ के डे आफ्टर टुमारो मॉर्निंग में आप यू कैन वॉक विदाउट सपोर्ट। ठीक है, मतलब 95% पेशेंट्स में आप सोच लीजिए, अनलेस अनटिल कोई मेडिकली अनफिट है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, 95% ऑफ द पेशेंट आपके आफ्टर 1 डे, मतलब आज सुबह कर रहा हूँ, परसों सुबह मॉर्निंग वो पेशेंट वॉक कर सकता है, अपने आप वॉशरूम यूज़ कर सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होती कि मैं अपने आप उठ के जाऊँ वॉशरूम, मैं कैसे ये मैनेज करूँ। I don't want to depend on anybody. एग्जैक्टली। फिर वी कीप द पेशेंट फॉर 5 days, जिसमें हम 2 दिन और रखते हैं। सो जिसमें आपके पेशेंट को हम टॉयलेट ट्रेनिंग एज वेल एज वॉकिंग सारा कुछ सिखा के भेजते हैं। सो ऑन 5th डे आई सपोज पेशेंट नॉर्मली वॉक करके जाता है, धीरे धीरे, आई वोंट से कि दौड़ना शुरू करता है, और पेशेंट धीरे धीरे अपने पैरों पे चल के जाता है। स्टेयर क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एंड पेशेंट कैन गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ। मेरे पेशेंट्स हैं जो 8-9 दिन में ऑफिस भी जाते हैं और 14th डे में हम स्टिचेस निकालते हैं। आजकल स्टेपलर लगाते हैं, स्टिचलेस भी होती है। सो 14 डेज़ में आप आइए, और अगर स्मॉल कट है सो बहुत इजी होता है, पेशेंट घूमते फिरते आता है स्टिच कटवा के। मतलब अगर आप पूछते हैं कि एग्जैक्टली पूरी तरह नॉर्मल लाइफ कब पेशेंट वॉक पे जा सकता है, आई वुड से 15 से 20 दिन में पेशेंट बहुत अच्छे से चल पाता है अगर सर्जरी अच्छे से हो तो। Okay. We talked about the limitations. कुछ ऐसी complications हैं that a patient needs to be aware of when they are coming in. Any particular patients they need to be aware of that I can go for surgery, या कुछ ऐसी complications हैं पहले से या while this surgery is happening they need to be aware of? देखिए, अगर फर्स्ट टाइम आपके रिवीजन सर्जरीज होते हैं कि एक बार कहीं हो गई, उससे पेशेंट गिर गया, उसके बाद हमें दोबारा करना पड़ सकता है, वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने जैसे मुझे पूछा कि आप कब हमें डरना चाहिए कि सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, राइट? देखिए, ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पेशली जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी इज़ लाइक मैथमेटिक्स, 2 + 2 4, right? It cannot be 3, it cannot be 5. Why I'm saying this? कि अगर सर्जन एक्सपीरियंस्ड है, वो कितना भी टेढ़ा घुटना हो, कितने भी टाइट हो, कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, अगर सही तरीके से सर्जरी हो जाता है, आई डोंट थिंक देयर इज़ 99% चांसेस। कुछ चीज़ें भगवान के हाथ पे होती है, बट आई बीइंग ए साइंटिफिक पर्सन, आई बीइंग ए सर्जन, आई वुड से कि ऐसा होता नहीं है कि कभी कोई कॉम्प्लिकेशंस। देखिए, नी के तरफ से इट इज़ वेरी रेयर, ग्लोबली इट इज़ एक्सेप्टेड ओनली 3% अप्रॉक्सीमेटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 3% कॉम्प्लिकेशन रेट अक्रॉस द ग्लोब है। 97% लोग ठीक हो जाते हैं। और कॉम्प्लिकेशंस, देखिए, किडनी, लीवर, टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। सो अगर आप जल्दी फास्ट करते हैं, ब्लड लॉस नहीं होता है, स्मॉल कट में करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू हैंडलिंग, मतलब आपके जो मसल्स वगैरह बहुत ज़्यादा कट शट नहीं करते हैं, तो उससे पेशेंट के बॉडी में प्रेशर कम पड़ता है। सो कॉम्प्लिकेशन चांसेस बिकम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सो अगर आप नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोचते हैं, वो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन अगर आप कॉम्प्लिकेशन के बारे में सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे और डरते रहेंगे, तो यू आर जस्ट लूजिंग योर टाइम एंड लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो कॉम्प्लिकेशंस सोचना नहीं होता है। सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस वो एक्सपर्ट होते हैं। हमारे अपोलो स्पेक्ट्रा ग्रुप में सारी टीम्स होती हैं। जैसे आप कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, हमारे एनेस्थेटिस्ट, दे आर वेरी एक्सपीरियंस, हमारे राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स होते हैं, एंड दे आर सो वेल ट्रेंड कि कॉम्प्लिकेशन रेट इज़ वेरी लेस एंड नेग्लिजिबल, एंड दे आर कैपेबल ऑफ मैनेजिंग द सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन, नॉट विद द नी। और नी रिप्लेसमेंट के बाद नी में आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन की सोच होनी चाहिए किसी में भी। जहाँ सर्जन को होनी चाहिए, ना जो सर्जरी करवा रहे हैं उनके दिमाग में होनी चाहिए। Now when we are discussing all about knee replacement, joint replacement surgery, complications, everything boils down to one thing: how expensive this surgery is. It is for the people who, हमारा age group है, me, my friends, when we are touching almost 30, a lot of friends of mine are 35, even 25. Even 20 years of age, we see kids around who are having knee pains and joint pains. As a doctor, as a person who has healthy knees and healthy joints, something हम जो जानना चाहेंगे कि वहाँ तक हमें ना पहुँचना पड़े, that we need to have a surgery or we need to have medications. What are some tips and pointers before we conclude on to this conversation? I just love to learn कि हम ऐसा क्या करें आज के lifestyle में that keeps our knees and joints healthy. आप मुझे बताइए, आप कब धूप में जाके बैठी हैं? आपको शायद याद भी नहीं होगा। आप कब, That is true. Yes. कब आप हाफ एन आवर दौड़ी हैं, यू हैव रन, शायद याद भी नहीं होगा, है ना? सो आप कब कब बैठ के कभी 10 मिनट, हाफ एन आवर सोची होगी कि मेरे को ये खानी नहीं है। आप ये ज़रूर करती हैं। आप आज के डेट में जो जनरेशन है, कोई इंस्टा, कोई फेसबुक, कोई डिजिटली इतनी एक्टिव हो गए, वो सारी चीज़ें देखते ज़रूर हैं, बट अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाते, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को कभी भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते हैं। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वी आर लैकिंग दैट।
माने आवर चिल्ड्रंस आर आवर यंग जनरेशन सब फ़ोन, कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स पे ही इन्वॉल्व हैं। पहले धूल मिट्टी में खेलते थे, दौड़ते थे, है ना, हर बंदा उसी में सारा एक्सरसाइज हो जाता था, आपको धूप भी मिलती थी, दैट वाज नेचुरल सोर्स, राइट। आप धूल मिट्टी से खेलते थे, आपको बीमार कम पड़ते थे बिकॉज आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती थी, है ना। आज के डेट में हल्की सी ठंड लग गई तो जुकाम खांसी हो गया, बुखार हो गया जी, राइट। बाहर कुछ खाते हैं तो पेट खराब हो गए। सो सेम गोज विद द नी एंड योर मसल्स एंड योर बॉडी। सो माई एडवाइस वुड बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट इज हेल्दी डाइट। ठीक है, वजन नहीं बढ़ानी आपको, हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट लेंगे, आप खा सब कुछ सकते हैं बट सब लिमिटेड खाइए, कम कम खाइए। मतलब पिज़्ज़ा खानी तो इतनी बड़ी पिज़्ज़ा नहीं खानी, हर चीज़ खाइए। मिठाई खानी है तो आप थोड़े से खाइए, राइट, खाने में कोई मना नहीं है। साथ में एक्सरसाइज भी करना है, आप खाते जाएंगे एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे। सो फर्स्ट इज हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें फूड हैबिट, न्यूट्रिशन। सेकंड आपकी एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज करना है जिसके आपके मसल्स हेल्दी रहेंगे। थर्ड थिंग, आपके अगर कभी कोई चोट लगती है तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए कि आप अपने आप, सेल्फ मेडिकेशन इज एक्चुअली डेंजरस। कॉम्प्लिकेट नहीं करना है कि आप जाके हज़ारों टेस्ट कराएं, 10 डॉक्टर को चेंज करें, गूगल में जाके देखें, अपने आप में स्ट्रेस में आ जाए। नो, डोंट कॉम्प्लिकेट इट, कीप इट वेरी सिंपल। आप देखिए मुझे एग्जैक्टली, आप डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर साहब मेरे नी में चोट लगी है या मेरे को नी पेन हो रहा है, रीज़न आप प्लीज़ एज ए डॉक्टर बताइए और उस रीज़न को ट्रीट करिए। आपको फीवर हो रहा है, आप पैरासिटामोल के टैबलेट खाते हैं, फीवर तो ठीक हो जाता है, बट आप कोशिश नहीं करते हैं कि आप फीवर के रीज़न को जाने। आपको टाइफाइड हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, यूटीआई हो सकता है। सो आप बीमारी को ट्रीट करेंगे तभी ना बुखार आपके ठीक होंगे। सो गोज विद द नी, आई मीन सेम वे। आपने अगर हेल्दी लाइफस्टाइल, वेट पुट ऑन नहीं करना है, एक्सरसाइज करनी है टू कीप योर मसल्स हेल्दी अराउंड द नी, एंड सन एक्सपोजर, विटामिन्स, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, मिल्क प्रोडक्ट लीजिए। आप धूप में जाएंगे तो नेचुरली विटामिन डी मिलते हैं, बोन्स ठीक रहते हैं। आजकल तो बच्चों को पढ़ाया जाती है, क्लास 4-5 से यही पढ़ाया जाता है, राइट। हमारे ज़माने में शायद नहीं होता था इतना नॉलेज। सो उस हिसाब से आप देखेंगे कि आप हेल्दी रखिए, नी को नेग्लेक्ट ना करें। आपके गाड़ी के जैसे होता है कि आप हवा, प्रेशर कम हो जाते हैं, प्रेशर डलवाते हैं आप, टायर घिस जाते हैं, टायर चेंज करवाते हैं आप, है ना। सेम गोज विथ योर नी। सो आपको मोबाइल रखने के लिए आपकी नी एंड योर लेग्स शुड बी हेल्दी। और कहीं पे अगर ऐसा होता है कि आपको लगता है कि इट इज़ बॉदरिंग यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ योर नी इज इफ इट इज़ एक्चुअली अफेक्टिंग योर डे टू डे एक्टिविटी एंड योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। लोग 12-12 घंटा कंप्यूटर में काम करें, 20-20 घंटा काम करें, वो भूल भी जाते हैं कि खड़े होकर चलना भी चाहिए। I think something that started was particularly, with COVID and sitting at home, work from home is something we've been sitting for 10-15 hours but don't even realize. तो आजकल एग्जैक्टली सारी चीज़ें हम इसलिए नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि वी आर नॉट अवेयर कि हाँ मुझे चलना भी है। और जब एक बार बीमार पड़ जाते हैं तब लगता है कि सब छोड़ दें, जॉब इम्पॉर्टेंट है, काम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो कर ही नहीं पाते। सो my advice to everybody would be, don't neglect your body. Body is precious and knee is more precious because it is giving you all happiness in your life. Brain, heart, soul is important. But आप ये सारी चीज़ों को लेके अगर बिस्तर पे लेटे रहेंगे तो कहाँ से आपको खुशी मिलेगी? So be mobile, be healthy, keep running and live your life. I think while you're saying this, we are realizing how कभी बैठ के सोचा भी नहीं होगा that how important your knees or your joints are, but grateful and thankful that we have healthy knees. So till the time you have healthy joints and healthy knees, keep yourself mobile. बीच बीच में सोच लिया करो, इंस्टा फेसबुक यूज़ करने के टाइम के उठ के थोड़ा सा चलना होता है, बस हाफ एन आवर स्पेयर कर लीजिए अपने लाइफ से। थ्रू 24 आवर्स में आधे घंटे आप निकाल लीजिए अपने लिए। हाफ एन आवर इज इनफ, ट्रस्ट मी। जस्ट वॉक 6 days a week, you run. Walk तो after the age of 60 कर लेना आप। Before 60 you should run. Trust me. I'm realizing it now. I can't run. Yes. I mean, I used to go to gym and I left You it for. just run for 15 to 20 minutes. And I go to 10 minutes stretching exercise. Healthy diet. You are through with everything. आपको कभी कोई डॉक्टर के पास जाने भी नहीं पड़ेगी. Trust me.
It's a huge reminder of how important and precious your joints and knees are. We have Dr. D.K. Das in conversation with us. Sir, thank you so much. It was my pleasure, my pleasure. For giving us your precious time, and he's one of the fastest knee replacement surgeons in India. With that, if you want to reach out to him, you can get onto the Apollo Spectra Hospital helpline number and you'll find him. With that, thank you so much for watching. Once again, thank you so much, sir. Thank you so much. It was pleasure having you. Thank you everyone. Keep learning, keep listening. We'll find you in another episode. Till then, subscribe. Thank you. Thank you.